months left to your NEET exam. Some of you are thinking that I can do it. Some of you are still thinking that is it even possible, and some have already given up. But listen to me carefully. If you have even 1% hope left for your exam, then these advice will change your game entirely. But before I start the video, do you know the real game changer? That's mindset. The first, foremost and best thing that you can do is stop overthinking about your past scores. I know the fact कि पुराने scores का impact अभी वाले scores पे भी पड़ता है. But let me tell you, they don't define you, but the next 60 days will. It doesn't matter if you are scoring 300, 400 or 500. If you follow this structural plan, then definitely you are going to crack NEET. जिस कन्विक्शन के साथ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लो दैट यू कैन डेफिनेटली डू इट अगर तुमने चाह लिया तो. नीट का एग्जाम इज़ नॉट बीइंग द बेस्ट, इट्स बीइंग बेटर देन येस्टरडे. जो भी तुम कल कर रहे थे उससे ज़्यादा बेटर तुम्हें करना है. दैट इज़ वॉट कंसिस्टेंसी इज़ एंड दैट इज़ वॉट ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट मीन्स. आई नो द फैक्ट कि बहुत लोग प्लान करेंगे, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम नो वन इज़ विलिंग टू टेक एक्शन. सो मेक श्योर कि यू आर कंसिस्टेंट इनफ कि तुम उस एक्शन को लो एंड तुम आगे बढ़ो. The second thing is really non-negotiable, that is NCERT, tests and revision. 90% of your questions directly come from NCERT. If you talk about biology, उसके अंदर सारे के सारे डायग्राम्स, उसके अंदर जितने भी फ्लो चार्ट्स दे रखे हैं, जितने भी डायग्राम्स की लेबलिंग दे रखी है, जो बैक के क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, you have to focus on each and every one of them. For chemistry, you know the fact कि inorganic chemistry के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको NCERT पढ़नी होती है. Apart from that, if you talk about organic chemistry, organic के अंदर जितने भी reactions हैं, you have to learn them by heart. सारे के सारे reactions, सारे के सारे examples, सारे के सारे names जो भी common naming दे रखी है, you have to learn them. And if you talk about physics, my friend, physics I am teaching you NCERT जो YouTube पे कोई भी नहीं पढ़ाता है. So if I am putting my effort into it, make sure you take advantage of it and you get ahead of 99% of the people जो कि physics के NCERT अभी ignore करके चल रहे हैं. The only rule is you don't have to just read NCERT, try to understand it and try to memorize each and every line. बस lines को रट लो एंड एग्जाम में बस तुम्हें ऑप्शंस टिक करके आने. कोई नहीं पूछेगा तुम्हें याद है नहीं है, तुम्हें उसके पीछे कॉन्सेप्ट पता है या नहीं है. टेक्निकली यू शुड बी नोइंग द कॉन्सेप्ट्स, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो रट लो. एग्जाम ऐसा ही है एंड दिस इज द हार्श रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गिविंग मॉक टेस्ट. देखो, नीट का एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, इट्स परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर. एंड उस एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए यू हैव टू गिव समथिंग विच इज क्लोजेस्ट टू दैट एग्जाम. And the thing which is closest to NEET ka exam is mock tests. In this month of March, you have to focus on giving at least one mock test every week. And in the month of April, you have to increase this to giving 2 mock tests every week. And don't just look at the scores or your mistakes. Try revising the mistakes. Try listing it down. Try making it most out of the mock test paper. You know what? ये सारी चीज़ें you can learn in the Med Mentors mentorship which we are providing. If you want to know how to analyze your test, how to increase your marks and last के 2 महीने में कैसे पढ़ना चाहिए, Med Mentors is what you got. Fourth and the most important thing is doing revisions. बिना रिवाइज किए पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. There is a simple rule, 3-2-1 rule, which means कि third week before the NEET exam के एग्जाम से 3 हफ्ते पहले you have to revise the entire syllabus once. The second week before NEET exam, you have to focus on your weak areas, diagrams. In the 3-2-1 rule, the first rule means कि NEET के एग्जाम से 1 week पहले you have to revise diagrams, flow charts, formulas and previous year questions. Your last 7 days should look like a movie recap, जिसके बारे में I'll make a video जब 10 दिन बचेंगे आपके. Just keep revising. Okay, so the fifth and the last thing is a perfect daily schedule. कोशिश करो मिनिमम कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने की. And I was preparing for my exam. लास्ट के 2 महीनों में मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा था. I used to wake up around 1 PM in afternoon. मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, तुम्हें जो सूट करता तुम वो करना. मैं 1 बजे दिन में उठता था, खाना खा करके घर से निकलता था लाइब्रेरी के लिए. एंड आई यूज्ड टू स्टडी देयर टिल 8. आराम से वहाँ पे मैंने जाकर के 7 घंटे पढ़ाई करी. उसके बाद 8 बजे वापस घर आता था, खाना खाता था, 1 घंटे रेस्ट करता था एंड अराउंड 10 बजे तक रफली मैं वापस लाइब्रेरी जाता था. वो लाइब्रेरी डे नाइट लाइब्रेरी थी, 24/7 लाइब्रेरी थी. एंड आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी और 10 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक आई यूज्ड टू स्टडी अगेन.
एंड रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक आई यूज़ टू स्टडी, एंड इफ़ यू कैलकुलेट दीज आवर्स तो 7 घंटे उधर और 7 घंटे इधर, इट अकाउंट्स टू 14 आवर्स। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 14 घंटे अभी से पढ़ना शुरू कर दो, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बाकी लोगों से बहुत पीछे हूँ, सो आई यूज़ टू पुट दैट एफर्ट। इफ़ यू फील दैट यू आर कंसिस्टेंट इनफ और तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है, तुम 10 घंटे भी पढ़ सकते हो। जस्ट मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ। एंड लास्ट में मैं यही बोलूँगा, कीप रिवाइजिंग, फिजिक्स का लेक्चर इज़ कमिंग ऑन द वे, क्लास 12th की एनसीईआरटी विल बी टीचिंग, उसके बाद क्लास 11th की। मेक श्योर यू आर सपोर्टिंग अस, बिकॉज तुम्हारे व्यूज़ देख करके ही मोटिवेशन आता है टू मेक फर्दर लेक्चर्स एंड प्रोवाइड यू वैल्यूएबल कॉन्टेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।